morning students, how are you all? So today in this video we will be we will start our discussion regarding a new chapter that is a new branch of mathematics, that is your trigonometry. Okay, so today in trigonometry let's start this particular chapter. It is a very interesting chapter and it is very important for your examination purpose of view and for your future also. So let's start. So here you can see I have written some basic information about trigonometry. So the term trigonometry is a Greek term which consists of three terms. Okay, one is tri means three, gon means your sides as you all know, and metron means to measure. So basically trigonometry is all about discussing about the three sides measure. That means three sides measure means you are having a triangle, so three sides closed polygon is your triangle. So we will be discussing about a triangle and a particular type of triangle, that is right angle triangle. Okay, so trigonometry is the branch of mathematics which deals with the relationship between the sides and the angles of a right angle triangle. As I have told you, that means trigonometry helps us to deal with an right angle triangle. In this particular triangle, what is the relation between the angles and the sides? So three sides are there and three angles are there. So how we can make some relations using these three sides and three angles? So trigonometry is all about that. Okay, so let's proceed further. So you can see here the basic concept we need to know about trigonometry is अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल. हम लोग कभी भी ट्रिगोनोमेट्री के पहले जाने से पहले हम लोग को सबसे पहले जो डिस्कस करना पड़ेगा वो दैट इज़ अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. सो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है दैट इज़ अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल. सो यू कैन सी दैट हियर इन दिस फिगर, इन दिस पर्टिकुलर फिगर ABC इज एन ट्रायंगल इन व्हिच इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल B. एंगल B पे 90 डिग्री बना है. So we know that if we will be talking with respect to the angle C, we can see that angle A and angle C, these two angles are acute angles and this angle is 90 degrees. So obviously these two will be acute angles. Okay, so if we will be talking about this one, that means your with respect to angle C, then I will be saying the side, listen carefully students, the side adjacent to angle C is there are two sides, one is your hypotenuse, one is your this BC. So hypotenuse is constant, that is fixed in any triangle. कोई भी triangle में right angle triangle में hypotenuse is the longest side opposite to the right angle. So वो fix है, लेकिन जो other side बचता है so that is your है ना angle side और है ना adjacent to the angle C is known as your base. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, base बोलते हैं. And the side opposite to this angle C is known as your perpendicular. So opposite side here I have, therefore I have written opposite side to the angle C is known as your perpendicular and the adjacent side to angle C is known as your base. Is it clear? Similarly you can see in this triangle, if I will be talking with respect to angle A, so with respect to angle A the side which is adjacent is your AB. So AB will be my base and the side opposite to the angle A will be your BC. So BC will be my perpendicular. Okay, so you can see in these two triangles, if the angle on the basis of which we are talking about, if that changes, then your hypotenuse although remains constant, okay, AC will be your hypotenuse, but this perpendicular and this base they are interchangeable. So I can conclude that in a right angle triangle, so when the orientation or on the basis of angles we are talking, if the orientation changes then your perpendicular and base they are interchangeable. Okay, so your perpendicular will be base and base will be the perpendicular. तो ये चीज़ आपको जानना है बच्चों कि अगर आपका ये एंगल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो ये उसके सामने वाला होगा मेरा परपेंडिकुलर, दैट विल बी इक्वल टू P, एंड एडजेसेंट वाला आपका होगा बेस, एंड द लॉन्गेस्ट साइड आज ऑब्वियस इट इज विल बी योर हाइपोटेन्यूज H. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्लियर. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री विल बी है ना डिफाइन टू द विल बी डिफाइन टू डिस्कस अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक concept related to acute angles only. We will be
discussing about acute angles only. In your further classes, in your higher classes, you will be discussing about the angles greater than 90 degree, but in your class 10 we will be discussing about only acute angles, that is 0 to 90 degree. Okay, let's proceed further. So you can see there are some trigonometric ratios which is already defined, we need to just know them. हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को जो टर्म्स है वही टर्म्स हम लोग को यूज़ करेंगे. तो बेसिकली देर आर 6 trigonometric ratios. So on the basis of which in a particular triangle, in a right angle triangle, the relationship is established between the angles and sides of that particular triangle. कोई भी right angle triangle में जब angles और sides के बीच में उनका relationship डिफाइन होता है, so that is on the basis of these 6 angle trigonometric ratios. So you can see the first one is my sine, actually that one is written as sine. Okay, second one is your cosine. Okay, so in short it is written cos. Third one is your tangent, 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 in short it is written tan. Okay, similarly fourth one is your cosec, fifth one is cosecant. Okay, cosecant, so that one is written as cosec. Then secant, secant, secant is written as sec. And then cotangent, cotangent is written as cot. Okay, so these are the 6 trigonometric ratios and their short form is sin a, cos a, tan a, cosec a, sec a and cot a. So when we are discussing about these trigonometric ratios, we will be considering a triangle, yes or no. So in this triangle, let ABC, we are talking with respect to angle A, then I will be putting here angle A. So sine of angle A, cosine of angle A, tangent of angle A, so on. Is it clear, student? So therefore you can see that trigonometric ratio along with the angle defines the complete thing. Okay, तो हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बाद यहाँ पे एक एंगल लिखा जाएगा या लिखना उसका फॉर्मेट है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो ऊपर जो मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल, ऐसे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ आपका. सो लेट दिस वन इज माई ए, दिस वन इज माई बी, दिस वन इज माई सी. सो विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वन इज माई 90 डिग्री. So with about this angle means, so which one will be my base? I will be saying this one will be my base, this one will be my hypotenuse, sorry, this one will be my perpendicular and this one will be my hypotenuse. Is it clear, students? Now let's see. You can see sine of a, sine of any angle is known as P by H, perpendicular by hypotenuse. So perpendicular is your BC and hypotenuse is AC, so it is BC by AC. Cos of A means base, B by H means base upon hypotenuse. So base is my AB and hypotenuse is my AC. Similarly tan of A is your perpendicular by base, so perpendicular is this one. Actually all these things are predefined. Okay, हम लोग इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते. So you have to realize what the ratio it defines. सो टैन जो होता है, टेंजेंट जो रेशियो होता है, वो रेशियो कैसे डिफाइन होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. सो यू कैन सी परपेंडिकुलर बाय बेस, सो BC बाय AB. सिमिलरली कोसेक इज योर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक इज योर हाइपोटेन्यूज बाय बेस and cot is your base divided by perpendicular. So you can see one thing, students, sin A and cosec A, when I am comparing, so this one is P by H, this one is H by P. So they are reciprocal of each other. Are you getting? Okay, they are reciprocal. So यहाँ पे P by H था, यहाँ पे H by P. So they are reciprocal. एक दूसरे का reciprocal है, मतलब 1 by that this is equal to this. Okay. सिमिलरली cos A एंड cos और sec का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लोग देखेंगे, ये होता है आपका B by H, ये आपका होता है H by B. सो दे आर ऑल्सो रेसिप्रोकल. सिमिलरली tan A is your B by P by B and cot A is your B by P. So P by B is equals to 1 by B by P, that means reciprocal. Are you getting? So we can say that sin is reciprocal of cosec, cos is reciprocal of sec and tan is reciprocal of cot. Okay, let's proceed further. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों. ठीक है, इसमें दीज आर प्री डिफाइंड थिंग्स. तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ मैं आपके लिए ट्रिक लिखा हूँ, इसलिए ट्रिक लिखा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि साइन ए या साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू वो P बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. तो कभी कभार बच्चे उसको
बी बाई एच लिख लेते हैं या पी बाई बी लिख लेते हैं। सो ये कन्फ्यूज़न आपका नहीं रहना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक न्यूमोनिक टाइप का याद कर सकते हैं। सो यू कैन जैसे आप लोग देखिए, मैं ऐसे याद रखा हूँ, मैं अपने घर के हिसाब से, मैं पुरी का हूँ, उड़ीसा पुरी से हूँ, तो मैं ऐसे याद रखा हूँ पुरी, पी फॉर पुरी, बड़ पंडा, पंडा मीन्स जो जगन्नाथ मंदिर में जो लोग पूजा करते हैं हम उसको पंडा बोलते हैं, पूरी बड़ा पंडा, हरी हरी बोल, हरी और हरी बोल मीन्स भगवान कृष्ण का जब हम लोग नाम लेते हैं हरी हरी बोल बोलते हैं हम लोग। तो मैं ऐसे याद रखा हूँ। तो आप लोग अलग अलग निमोनिक से आप लोग याद कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो मैं बस ऐसे आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया हाउ यू कैन रिमेंबर। तो देखिए यहाँ पे बीच में एक डिवीजन का साइन सोच लीजिए कि डिवीजन का साइन है। तो यहाँ पे साइन मतलब पी बाई एच, कॉस मतलब बी बाई एच, टैन मतलब पी बाई बी। इज इट क्लियर? सिमिलरली कोसेक मतलब एच बाई पी, ओके, सेक मतलब एच बाई बी, कॉट मीन्स बी बाई पी। You can use this particular thing to know and to remember the trigonometric ratios about the angles. Okay students, चलिए आगे बढ़ते हैं। So सेकेंड जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। रेसिप्रोकल मतलब कोई भी चीज़ का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन बाई दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बोल रहा था। So sin and cosec they are reciprocal. So 1 by sin A is equal to cosec A, 1 by cos A is equal to your sec A, 1 by tan is your cot A। ये चीज़ आपको जानना है। मान लीजिए आपका tan A आपका 2 है या tan A मान लीजिए आपका 2/3 है, तो मैं बोलूँगा कि cot A कितना होगा, cot A होगा 1/2/3। So 1/2/3 is your 3/2। क्लियर? मैं और एक क्वेश्चन उसके रिलेटेड सॉल्व कर देता हूँ। मान लीजिए आपका साइन ए दिया है, साइन ए इज गिवन 2/3। सो आई कैन से कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 by sin ए, 1 by sin ए मीन्स 1/2/3। सो 1/2/3 इज नथिंग बट 3/2। ये चीज़ आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, कैसे हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। So you can solve questions like this. So after this reciprocal of T ratios, you will be discussing about quotient relation. क्वेश्चन का मतलब जब हम लोग कोई भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो द रिजल्ट विच यू आर गेटिंग, द आंसर यू आर गेटिंग इज नोन एज योर क्वेश्चन। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टैन ए, साइन ए को जब साइन ऑफ एनी एंगल को जब आप कॉस ऑफ उसी एंगल से डिवाइड करते हैं तो आपको जो मिलता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिलता है, हम उसको बोलते हैं टैन ऑफ है। तो कैसे, अगर आपको प्रूव करना है तो आपको मैं ये दिखा सकता हूँ। एक्चुअली साइन ऑफ एनी एंगल इज नोन एज पी बाई एच, कॉस ऑफ एनी एंगल इज नोन एज बी बाई एच। सो आप जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो पी बाई एच डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साइन हो जाता है, और ये जो नीचे बी बाई एच होता है उसको हम लोग उल्टा लिखते हैं। ये छोटे बच्चे जैसे हम लोग थे तब हमको पढ़ाया गया था। सो एच एच कैंसिल हो गया, तो हाउ मच यू आर गेटिंग, पी बाई बी। सो बेसिकली पी बाई बी इज नथिंग बट द रेशियो दैट इज टैन, okay, tangent, okay. So you can see sin A by cos A is your tan A. Is it clear? So these are the reciprocal quotient relations. Similarly cot A, okay, cot A is equals to your cos A by sin A. You will be knowing all these things, okay. Now coming to the next concept today we will be discussing is पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये सारा चीज़ बहुत आसान है बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए थोड़ा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हियर आई हैव टेकन ए टर्म लाइक दिस। अब हम लोग कैसे लिखें, मैं जैसे देख सकते हैं मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिस वन, ओके, लाइक दिस। थोड़ा सा ओवल होगा और ऊपर ऐसे होगा, लाइक दिस। सो दिस वन इज नोन एज थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। सो बेसिकली थीटा इज ए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल। कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे एंगल के लिए हम लोग थीटा यूज़ करते हैं। तो थीटा के बाद हम लोग और भी कुछ एंगल यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग अल्फ़ा यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, क्या बोलते हैं इसको, अल्फ़ा। सिमिलरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बी का ये थोड़ा नीचे होगा, इसको बोलते हैं बीटा। सिमिलरली इस टाइप का थोड़ा यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं गामा। और इसको हम लोग भी यूज़ करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट कर, इसको बोलते हैं थीटा।
So these are the some representations we are using in mathematics to represent any angle. कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इनका जनरल दिस सिम्बल्स आर बीइंग यूज्ड. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा हूँ. तो साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. ओके साइन स्क्वायर थीटा, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स मैं इसीलिए यहाँ पे लिखा हूँ डू नॉट मिस इंटरप्रेट. इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट या मिसकंसेप्शन मत बनाइए. साइन थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर. ओके सो साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा. सो बेसिकली कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर फिर बाद में थीटा आएगा. सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टैन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा. साइन क्यूब साइन थीटा क्यूब इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा. लेकिन साइन थीटा क्यूब अगर कोई लिख देता है तो ये गलत हो जाता है बच्चों. ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं तो इस चीज़ को आपको देखना है. जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, आप लोग स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं. द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन्स सेम. कोई भी मान लीजिए ये ABC एक मेरा ट्रायंगल है. अगर ABC ट्रायंगल में आप देखेंगे ये एंगल C मेरा कांस्टेंट है. मान लीजिए ये 40 डिग्री 50 डिग्री 45 डिग्री कुछ एक पर्टिकुलर एंगल 60 डिग्री. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ABC एक ट्रायंगल था. अब इस जगह पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हूँ, इस जगह पे एक परपेंडिकुलर बना दिया हूँ. तो कुछ बच्चे शायद उनका ये डाउट रहेगा कि सर अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है और उसी ट्रायंगल का थोड़ा सा साइड बढ़ा करके मैं ऐसे कर दिया, ये भी वही 30 डिग्री, ये भी वही 30 डिग्री. तो अगर मैं इसका साइन ए निकालूंगा, ओके इसमें इसका साइन एंगल निकालूंगा और इसका साइन एंगल निकालूंगा तो ये तो बड़ा होगा क्योंकि इसका साइड बड़ा है. बच्चों एक चीज़ आप देखिए, बेसिकली दीज आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. सो इसमें क्या होता है, कभी अगर आपका साइड्स बड़े होते हैं तो एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है. क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल चैप्टर ओके वी हैव डिस्कस अबाउट सिमिलरिटी. हम लोग सिमिलरिटी डिस्कस किए हैं. तो सिमिलरिटी में आप देख सकते हैं कि दिस एंगल एंड दिस 90 डिग्री, दिस एंगल दिस 90 डिग्री, दिस एंगल दिस 90. सो दिस 3 triangles they are similar. So if 3 triangles are similar then their corresponding sides ratio will be equal. Then their corresponding sides ratio will be equal. I am repeating the same thing students. तो उनका जो रेशियो होगा साइड्स का वो क्या होगा, सेम होगा. तो वैल्यू चेंजेस नहीं होगा. तो इसीलिए बच्चों एक चीज़ याद रखो, साइड का लेंथ बढ़े या घटे, ठीक है, उससे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कोई भी साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसका वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है बच्चों, थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा देखिए. द लास्ट कॉन्सेप्ट टुडे विल बी डिस्कसिंग इज ए क्वेश्चन ऑन द एबव है ना कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड. सो हियर इट इज गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3. आपको क्या दिया है, tan a 4/3 दिया है कि फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. हमें दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सारे निकालने हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूंगा. तो मुझे एंगल ए के कॉन्सेप्ट में बात करना है, तो मैं पहले इसको एंगल ए बना दिया. आप इसको भी बना सकते हैं. और 4/3 तो हम लोग जानते हैं कि tan ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू P/B. तो यहाँ पे अगर ये मेरा है तो इसको एडजेसेंट जो है वो हो जाएगा B. सो AB हो गया मेरा B. ओके ओके सो दिस वन विल बी AB स्टूडेंट्स. ओके क्लियर. एंड उसके ऑपोजिट में जो होगा तो वो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर. सो tan A को हम लोग क्या लिखेंगे, tan A इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू BC/AC. तो मान लीजिए अगर रेशियो BC/AC इज इक्वल टू 4/3 हो रहा है इतना, तो मैं लेट BC इज इक्वल टू 4K ले सकता हूँ, AC इज इक्वल टू 3K वेयर K इज सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ये चीज़ जानते हैं. तो अगर BC 4K हुआ, AC 3K हुआ, तो हम लोग ये बोल सकते हैं सो वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल टू फाइंड द लेंथ AC.
So by using Pythagoras theorem we can find the length of AC is equal to 5k. ये जो AC आया वो 5k आ गया. So in this triangle now you can see your all the three components, that means your base, perpendicular and your hypotenuse, all these three components are given. Now you can find your sin A, cos A, tan A, cot A, all these components. कैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, साइन ए में कैसे निकाला, साइन ए का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो मैं क्या किया, परपेंडिकुलर मेरा जो है परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, मेरा आंसर आया 4/5. सिमिलरली कॉस ए का आया 3/5. ओके, कॉस ए क्या है b/h, तो b आपका 3 है, h आपका कितना आया हाइपोटेन्यूज 5k. सो 3k/5k, k विल बी कैंसल, यू विल बी गेटिंग 3/5. कॉट ए क्या है, कॉट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/tan ए, तो tan ए का वैल्यू जितना होगा उसका उल्टा हो जाएगा कॉट ए. सो tan ए यहाँ पे 4/3 दिया है, सो कॉट ए हो जाएगा 3/4. सिमिलरली कोसेक ए आपका कितना होगा, कोसेक ए इज रेसिप्रोकल, वी नो दैट कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना है 4/5, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब 5/4 विल बी और कोसेक के. Similarly sec A will be reciprocal of cos A, that is 3/5 reciprocal, that is equal to 5/3. So students, trigonometry is very important and is very easy also. ठीक है, so try to get the concepts if you and solve the questions. If you face any problem then you can ask me. Okay, thank you.